every fresh page, the header should be date, subject, name, रोल नंबर, सेक्शन। ये हर एक पेज के ऊपर होना चाहिए। जो भी आप क्लास नोट्स बना रहे हैं, every page of your class notes should contain these uh, elements in the header. So today हम लोग continue कर रहे हैं, we are continuing with the further discussions on the factors influencing the evolution of programming languages. So last time we had seen from customer's point of view what are the factors which are influencing the evolution of programming language. Then we had seen about the developer's point of view and factors influencing the programming language, the evolution of programming language from developer's point of view. So we had seen some points. So from developer point of view, there are some the points that we have discussed, we will be discussing them in details today. So number one point was support and configuration. So support and configuration is a very important factor which makes the programming language either popular or it might make it a non-popular kind of a language. So support का मतलब क्या होता है कि as soon as you have purchased a licensed software from uh, uh, a standard company, the company provides you with support, technical support जिसको बोलते हैं. So what happens is that whenever there is a problem with the software that you are using, licensed software that you are using, you can call the company and the company will provide you with the support and will help you to solve the problem. Also, when you are purchasing a licensed software, say for example from Microsoft, we can purchase Visual Studio, and using that Visual Studio we can create uh, web-based applications or any kind of enterprise applications. Or we can purchase Java from Oracle Corporation. Previously Java was with Sun Microsystems, then Oracle purchased it. So in order to purchase a licensed version of Java, we have to contact Oracle Corporation. If we have purchased a licensed version of Java, then if we are facing any problem while coding Java or while building any applications using Java, then Oracle Corporation will help us at any point of time. से अगर रात के 2 बजे भी आपको अगर आपका प्रोजेक्ट चल रहा है, एग्जीक्यूशन उसमें कोडिंग चल रही है प्रोजेक्ट में, तो रात के 2 बजे अगर प्रॉब्लम आया है, तो आप तुरंत उनको फ़ोन लगा सकते हैं ऑन देयर हेल्पलाइन नंबर दैट दे प्रोवाइड एंड इमीडिएटली विल गेट अ टेक्निकल सपोर्ट। आइदर वो प्रॉब्लम को सॉल्व करके आपको कोड लिख के बता देंगे, या तो फिर आपको एक पैच भेज देंगे, दैट पैच व्हेन यू अटैच इट विथ योर एप्लीकेशन विल सॉल्व द प्रॉब्लम। Similarly with Visual Studio, if you are using Visual Studio to build an enterprise application and suddenly there is a problem at any point of time, you can immediately call the support personnel from Microsoft and they will immediately help you. This is the advantage, this is the support which is given by us by the standard companies if you are using licensed versions. But when it comes to unlicensed versions or unlicensed software, that is open source software, a very popular example is PHP, Python. They are open source. You don't need to purchase them. No, you don't need to purchase them. You don't need to purchase the license for building commercial applications. So what happens is that whenever there is a problem, say आप PHP यूज करके एक वेब एप्लीकेशन बना रहे हैं, एक एंटरप्राइज एप्लीकेशन बना रहे हैं, और वो प्रोडक्ट बनते बनते कोई प्रॉब्लम आ जाता है, कोई चीज आप जो है कोई पार्ट जो है मॉड्यूल का आप इंप्लीमेंट करना चाहते हैं, बट इट इज नॉट गेटिंग इंप्लीमेंटेड, देयर इज सम मेमोरी इश्यूज और देयर इज सम काइंड ऑफ ए स्टोरेज इश्यू और देयर इज ए टाइम कॉम्प्लेक्सिटी प्रॉब्लम दैट इट इज मेकिंग टेकिंग मोर टाइम देन एक्सपेक्टेड। तो आप इमिडिएटली अगर उसमें अगर कुछ इस टाइप के कुछ प्रॉब्लम आपके आते हैं, यू ट्राई टू कॉन्टैक्ट
पीएचपी पर्सनल्स। पीएचपी पर्सनल्स मतलब क्या है कि पीएचपी का क्या है कि ओपन फोरम होता है एक्चुअली। तो कोई एक कंपनी तो इसको चलाती नहीं है, तो यू डोंट हैव सपोर्ट पर्सनल्स रेडी विथ ए टेलीफोन नंबर, जहाँ पे आप कॉल करें तुरंत आपको एक टेक सपोर्ट मिले। तो पीएचपी के लिए आप अगर प्रॉब्लम आ गया है तो आपको क्या करना पड़ेगा, फोरम में आपको सेंड करना पड़ेगा आपके प्रॉब्लम को। उस फोरम के अंदर में जो भी एक्टिव यूजर्स होंगे उस समय, so it is a very conditional kind of a thing. If at that particular moment, if some PHP experts are present in that forum doing something, they hear your problem or they see your problem, they see what you have typed, and then if they get time, they will give an answer if they have an answer to that. तो आप ऑब्जर्व करके देख सकते हैं कि अगर आप एक कमर्शियल एप्लीकेशन बना रहे हैं और आपको आपको प्रॉब्लम आता है, पीएचपी यूज करके आप बना रहे हैं, तो टाइम कंस्टेंट एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर बन जाता है, बिकॉज टाइम इज मनी। सो अगर आप इमीडिएटली उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन आपको नहीं मिलता है, अगर कुछ समय बाद मिलता है, से 2 घंटे 2 दिन के बाद मिलता है अगर आपको उसका आंसर, तो दैट आंसर इज यूजलेस, बिकॉज सॉल्यूशन तो मिल गया आपको, लेकिन बट द सॉल्यूशन इज टू लेट टू गेट टू बी इम्प्लीमेंटेड। आपका प्रोजेक्ट कॉस्ट जो है वो एक्सपोनेंशियली बढ़ जाएगा। सो टेक सपोर्ट एक बहुत ही नेसेसरी एक चीज होती है व्हेन वी आर डेवलपिंग कमर्शियल एप्लीकेशन, because during the development of commercial applications the time constraint is money. Time is money. So if you have any problem it has to be solved immediately, and that can only happen if you have purchased a licensed software. From there you can get a tech support immediately, because they are binded by law, because they have taken money from you for the license, so they are binded by law to answer to your queries and solve your problems. And there, if there is a loss in what they have suggested, if you incur a loss, then you are entitled to uh, uh, to uh, file a complaint in the court, and you can win that particular lawsuit and get इसको बोलते हैं मुआवजा आपको मिल जाएगा, प्रॉपर कॉम्पनसेशन विल गेट। सो ये सब चीजें आती हैं जब लाइसेंस सॉफ्टवेयर होता है, लेकिन पीएचपी के मामले में ये नहीं कर सकते आप, पाइथन के मामले में ये नहीं हो सकता। अगर उसमें अगर प्रॉब्लम आता है तो सॉल्यूशन मिला तो मिला, नहीं मिला तो नहीं मिला। तो यू कैन नॉट गो ऑन ए फुल फ्लेज्ड commercial application building using open source software, because their technical support is very weak. Hence large corporations prefer using Microsoft or Oracle provided licensed programming languages टू बिल्ड देयर सॉफ्टवेयर। से अभी जो आप सॉफ्टवेयर कभी बनाए होंगे, सी या C++ यूज किए होंगे, या कई लोग जावा भी यूज किए होंगे, पीएचपी भी यूज किए होंगे। तो हम जितने भी सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हैं वो एकेडमिक पर्पसेस के लिए यूज करते हैं, उसकी लाइसेंस की जरूरत नहीं पड़ती है। जिस चीजों में लाइसेंस नहीं जरूरत पड़ती उन चीजों का टेक सपोर्ट भी आपको नहीं मिलेगा, प्रॉपर टेक सपोर्ट नहीं मिलता है। सो दैट यू कैनॉट यूज इन बिल्डिंग कमर्शियल एप्लीकेशन। आप ट्रिवियल एप्लीकेशंस बना सकते हैं, नॉन कमर्शियल बेस एप्लीकेशंस बना सकते हैं, लेकिन जैसे ही कमर्शियल एप्लीकेशंस की बारी आती है, सपोर्ट एंड कॉन्फ़िगरेशन इज अ मेजर इश्यू that influences how you select a programming language, and that helps in the evolution of programming languages also, because developers want those kind of programming languages which have technical support and good configuration. सेकंड जो फैक्टर है इज डेवलपमेंट टाइम। डेवलपमेंट टाइम एक ऐसा फैक्टर है, जैसे अभी मैंने कहा था कि टाइम इज मनी। सो व्हेन यू डेवलप, try using a particular programming language to develop your application software, then the development time commercially अगर develop कर रहे हैं तो development time कम से कम लगना चाहिए। तो quick development is very necessary for projects. So जैसे विजुअल बेसिक या विजुअल स्टूडियो जिसको हम कहते हैं, जो विजुअल बेसिक उसका एक पार्ट है, तो विजुअल स्टूडियो, नेटबीन्स या इक्लिप्स आईडी, ये सब ऐसे कुछ
एप्लीकेशंस हैं जिनको यूज करके, जैसे आईडीज हैं जिनको यूज करके आप कमर्शियल एप्लीकेशंस बना सकते हैं इन ए वेरी फास्ट पेस. So that influences how the selection of programming language takes place when you are going to develop commercial applications, because development time is money. If you are able to develop your software project within less time, then your profit becomes more. You can incur more profits using by selling that particular product. If it is taking more time, that means your profit margin will reduce. ठीक. So यहाँ पे टाइम कंस्ट्रेंट जो है वो क्लाइंट के लिए नहीं है, वो डेवलपर के लिए होता है. लेकिन टाइम कंस्ट्रेंट का एक और फैक्टर कस्टमर के लिए तब हो जाता है जब कस्टमर वांट्स द प्रोडक्ट in a very less amount of time, very quickly he wants, then the time factor comes also into play. Here also the time factor comes into play. So in order to deliver a product within a time constraint to a client, you also need those programming languages which can be developed very fast. अगर टाइम कंस्टेंट नहीं है तो आप नॉर्मल जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं C++ उन पे आप डेवलपमेंट कर सकते हैं, बिकॉज developing a commercial product using C++ takes a lot of time, because everything you have to program from scratch. But when you are developing the same application using Java or Visual Basic or Visual C++, the time taken will be very very less, exponentially less हो जाता है. So that improves your profitability. So development time is a major factor. Then comes the third factor, which is known as the development cost. Development cost is correlated with development time and the effort. देखिए इसमें दो चीज लगती हैं, एक है efforts, एक होता है development time. Effort is man hours. Man hours मतलब एक person को how many hours are needed to develop how many lines of code in 1 hour. How many lines of code can be developed by one person in 1 hour? How many lines of code can be developed by a person in 1 hour is known as man hours. And that code has to be useful code. Garbage code नहीं होना चाहिए. तो उसको हम लोग जो है that is given a particular value, say $1 per man hour, say for example. So 10 man hours के लिए $1. तो इस टाइप से जो है कमर्शियली सेट करते हैं चीजों को. सो दैट इज कंट्रीब्यूटिंग टू डेवलपमेंट कॉस्ट. डेवलपमेंट कॉस्ट में लाइसेंसिंग का भी कॉस्ट आता है, बिकॉज दैट एड्स टू द प्रोडक्ट कॉस्ट. तो जो भी कॉस्ट जो है वो प्रोडक्ट के कॉस्ट में ऐड हो जाते हैं, उनको हम डेवलपमेंट कॉस्ट बोलते हैं. इसमें लाइसेंसिंग जो कॉस्ट इंक्लूड होते हैं, द टाइम नीडेड फॉर डेवलपमेंट ऑल्सो गेट्स इंक्लूडेड, द मैन आवर्स नीडेड फॉर डेवलपमेंट ऑल्सो गेट्स इंक्लूडेड. ये सभी चीजें जिस सॉफ्टवेयर में कम से कम रहेंगी वो सॉफ्टवेयर जो है प्रेफर किया जाता है, वो सॉफ्टवेयर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को प्रेफर किया जाता है फॉर बिल्डिंग एप्लीकेशंस. तो इफ यू आर डेवलपिंग एन एप्लीकेशन इन PHP, it will be more economical rather than building the same application in ASP.NET or GSP. Why? Because if you are building a commercial application using ASP.NET or GSP, you have to pay the licensing fees. But if you are using PHP, you don't need to pay the licensing fees because it is free. So you save money in the licensing fees. But saving money in the licensing fees is not enough, because what I've told you, that man hours, effort, जिसको हम बोलते हैं effort, is important. Licensing fees is also important. Development time, the time required for development is very very important. And the technical support is also important. So all these costs को manage करके अगर हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सिलेक्ट करते हैं, दैट इज हाउ वी सिलेक्ट अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज दैट हेल्प्स अस टू मैनेज द डेवलपमेंट कॉस्ट इन ए लिमिटेड वे. सो बैलेंस मैनर में डेवलपमेंट कॉस्ट रहना चाहिए, क्योंकि PHP में एप्लीकेशन आप कमर्शियल एप्लीकेशन डेवलप नहीं कर पाएंगे बिकॉज उसमें टेक्निकल सपोर्ट नहीं है. ASP.NET या जावा में या JSP में आपको डेवलप करना पड़ेगा, तो उसमें आपको लाइसेंसिंग कॉस्ट देना पड़ता है. सो दैट a balance has to be created. So that is also a contributing factor for
the evolution of programming languages from the developer's point of view. And then the fourth point is reliability and writability, readability and writability. रीडेबिलिटी एंड राइटेबिलिटी का मतलब क्या है? रीडेबिलिटी का मतलब है कि whichever programming language we have selected, that should be easily readable. but प्रोग्राम स्टेटमेंट्स जो है ना बहुत इजी होने चाहिए. कॉम्प्लिकेटेड प्रोग्रामिंग स्टेटमेंट्स अगर हैं तो दैट इज a failure factor for the application, that particular programming language. तो रीडेबिलिटी का बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर बनता है. जैसे एग्जांपल बता रहा हूं कि सी प्लस प्लस में हम लिखते हैं सी आउट टू राइट समथिंग ऑन द आउटपुट स्क्रीन. सी आउट हमने लिखा, डबल कोट्स में वेलकम लिखा, तो वेलकम आपके आउटपुट स्क्रीन में दिखने लगेगा. बट इफ आई एम राइटिंग द सेम कोड इन जावा, then I have to write system dot out dot println ब्रैकेट के अंदर डबल कोट्स में वेलकम. तो यू कैन ऑब्जर्व देयर इज अ डिफरेंस. अब ये जो आप डिफरेंस देख रहे हैं इसमें सिस्टम में एस कैपिटल होना चाहिए, डॉट के बाद जो आउट यूज कर रहे हैं उसमें स्मॉल केस होने चाहिए, डॉट के बाद जो println यूज करेंगे उसमें भी स्मॉल केस होना चाहिए. कहीं पे भी मिस्टेक कर देंगे तो यहाँ पे जो है आपका प्रोग्राम नहीं चलेगा, आपका जो स्टेटमेंट है वो एग्जीक्यूट नहीं हो पाएगा. So here you can observe the readability is little bit difficult in Java. It is easy in C++. So here C++ gets more marks than Java when it comes to readability of code. वैसे राइटेबिलिटी भी सेम हो गया. अब रीडेबिलिटी से कनेक्टेड होता है राइटेबिलिटी. जैसे अभी मैंने बोला कि सी आउट लिख के आप आउटपुट दिखाते हैं सी प्लस प्लस में, और वही चीज अगर आपको जावा में राइट करना रहे तो आपको सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन ऐसे लिखना पड़ेगा. सो रीडेबिलिटी और राइटेबिलिटी का एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर, बिकॉज इट इज डायरेक्टली कनेक्टेड टू द लर्निंग पार्ट. दिस इज हाउ यू लर्न, हाउ फास्ट you learn a programming language. If a new programming language you are going to learn, if it is easy in readability and writability, then you can easily adapt that particular language. It becomes easy. It is ease of use that helps you to adapt that particular language, and that becomes more popular, and that helps you to build programs easily and fast. स्पीड बढ़ जाती है, आपके समझने की स्पीड बढ़ जाती है और आपको प्रोग्राम बनाने की स्पीड बढ़ जाती है. तो building the application using a particular programming language becomes easier and fast when readability and writability is easy. ठीक. सो ये दोनों फैक्टर जो है वो बहुत कंट्रीब्यूट करते हैं when we are identifying the influence on the evolution of programming languages. So when the programming language is evolving, रीडेबिलिटी राइटेबिलिटी को ध्यान में रखा जाता है. अब कई लोग से ये सोच रहे होंगे कि सी प्लस प्लस के बाद जावा आया है, इवोल्यूशन हुआ है, तो जावा में तो लिखना डिफिकल्ट हो रहा है. लेकिन पॉइंट ये है कि जावा में, जैसे अभी मैंने कहा कि आपको जो है अगर कमांड प्रॉम्प्ट में कुछ प्रिंट करना है तो सी आउट यूज कीजिए सी प्लस प्लस में, और जावा में सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन यूज करिए. जावा इज नॉट मेंट फॉर कंसोल प्रोग्रामिंग एक्चुअली, इसीलिए उसमें ऐसा फैसिलिटीज दिया हुआ नहीं है जो कंसोल प्रोग्रामिंग में आपको आसानी पड़े उसको लेके. लेकिन सी प्लस प्लस कंसोल प्रोग्रामिंग में बहुत यूज होता है, तो कंसोल प्रोग्रामिंग रिलेटेड जो उसमें एलिमेंट्स है बहुत ईजी दिए हुए हैं. जावा इज मोर मेंट फॉर मल्टी थ्रेडेड एनवायरमेंट, मल्टी प्रोसेसर सिस्टम्स एंड वेरी हाई एंड वेब बेस्ड सिस्टम्स. तो उसमें वो सब चीजें बहुत ऐसी चीजें दी हुई हैं जो आसानी से आप कर सकते हैं. when you are building web applications, high end applications using Java, it is easier than C++. so evolution पे वो सब factors भी आ जाते हैं कि किस पर्पस के लिए आप लैंग्वेज को यूज करने वाले हैं. बट रीडेबिलिटी और राइटेबिलिटी एक काफी प्रोमिनेंट फैक्टर है दैट हेल्प्स फॉर adapting a new programming language or evolving a new programming language. Then fifth point जो है efficiency है. Efficiency in terms of memory, in terms of speed. दोनों चीजें जो है efficiency में आती हैं, memory and speed. ठीक. So efficiency of an application depends on various factors. The selection of programming language is one of the important ones to influence the performance. So
जैसे एग्जांपल में, जैसे आप यहाँ पे पॉइंट को पढ़ सकते हैं, इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ वेब एप्लीकेशन डेवलपमेंट लैंग्वेजेस, इफ यू कंसीडर वेब एप्लीकेशन डेवलपमेंट, पर्ल और पीएचपी को अगर कंपेयर करें, सो पर्ल is supposed to be more efficient in terms of speed, robustness, and memory management, etc. But PHP is not that efficient. लेकिन PHP जो है वो easy to learn है, पर्ल is difficult to learn. उसका रीडिंग, जैसे रीडेबिलिटी राइटेबिलिटी उसका थोड़ा डिफिकल्ट है, लेकिन पीएचपी का रीडेबिलिटी राइटेबिलिटी बहुत ही अच्छा है, बहुत इजी है, इसलिए पीएचपी इज मोर पॉपुलर. सो ये सब, ये इंपॉर्टेंट फैक्टर एफिशिएंसी में. जो मैंने जैसे कहा कि जो मेमोरी मैनेजमेंट एंड स्पीड इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. जैसे जावा में मेमोरी मैनेजमेंट बहुत अच्छा किया हुआ है. सी प्लस प्लस में प्रोग्राम आप अगर लिख रहे हैं और जावा में अगर सेम प्रोग्राम को लिखेंगे, जावा विल मैनेज मेमोरी मोर एफिशिएंटली देन सी प्लस प्लस. उसके इंटरनल स्ट्रक्चर ही ऐसे बनाया हुआ है. So that is why Java is more popular than C++. So these are the factors which help. And जैसे जैसे आप ऑब्जर्व करेंगे, the programming languages which are evolving, they are more efficient in terms of speed and memory management. तो आप जो जो एडवांस प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस उनको अगर यूज करें, तो आपका एप्लीकेशन ज़्यादा फास्ट चलेगा, आपका प्रोडक्ट जो है वो ज़्यादा फास्ट चलेगा और कम मेमोरी स्पेस एक्वायर करेगा. So this is the efficiency factor which is very very necessary. Then sixth point is reliability. Reliability is the ability of an application to withstand stress. Stress conditions मतलब क्या होता है? Stress condition मतलब है more than the expected number of requests arriving at a time on a particular application. Say for example, आपने एक मॉड्यूल बनाया है, that is a web module. वो वेब मॉड्यूल जो है एट ए टाइम से कुछ नंबर ऑफ यूजर्स को एंटरटेन कर सकता है. से वेब मॉड्यूल इज मींस, से फॉर एग्जांपल इट इज एन ई कॉमर्स काइंड ऑफ ए वेब मॉड्यूल वेयर देयर इज ए शॉपिंग कार्ट. जैसे अमेजन का, जैसे एक वेबसाइट को आप अगर समझ के चले, वो एक ई कॉमर्स वेबसाइट है, उसमें जो मॉड्यूल दिया रहेगा जिसमें कि कोई भी शॉपिंग कार्ट में अपना प्रोडक्ट को सिलेक्ट करके ऐड कर सकता है. सो यू कैन इमेजिन एट ए टाइम, एक सेकंड के अंदर में हो सकता है कि 1 मिलियन कस्टमर्स उसमें लॉग इन करें. इट इज पॉसिबल दैट एट अ पर्टिकुलर इंस्टेंस ऑफ टाइम 1 मिलियन कस्टमर्स कैन अराइव एट द सेम टाइम, मतलब एक एक करके नहीं, एट द सेम टाइम. सो दैट इज अ स्ट्रेस कंडीशन. इसका मतलब आपका एप्लीकेशन अगर 1 मिलियन कस्टमर्स के लिए नहीं बना है एट ए टाइम, मतलब इन ए स्पैन ऑफ टाइम वो हैंडल कर सकता है, लेकिन एट द सेम इंस्टेंस, एट द सेम क्लिक, सोच लीजिए 1 मिलियन यूजर्स ने लॉग इन कर लिया एट द सेम क्लिक. सो अगर आपका वेब एप्लीकेशन, आपने जो कमर्शियल एप्लीकेशन बनाया है, ई कॉमर्स का एप्लीकेशन बनाया है, इफ इट इज अनेबल टू विथस्टैंड दैट काइंड ऑफ ए प्रेशर, दैट इज अ स्ट्रेस कंडीशन, तो क्या होगा, आपका जो मॉड्यूल है वो ब्रेक डाउन हो जाएगा, आपका सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन वहीं पे ब्रेक डाउन हो जाएगा और सर्वर एरर आना शुरू हो जाएगा. So all the customers who have joined will lose their session and they will be informed using a web page there is a error or there is a server problem. You cannot go further in the website. You cannot move further in the website. So आपने जो अभी तक परचेज किया था वो सब नल हो गया है. आपको फिर से सब कुछ शॉपिंग कार्ट में ऐड करना पड़ेगा. तो इस टाइप का कंडीशन को जो अगर हैंडल कर ले, तो हम कहते हैं दैट पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन इज रिलायबल. ये मैं एक एग्जांपल बताया मैंने. ऐसा बहुत सारे एग्जांपल्स हो सकते हैं. जैसे मेमोरी का एग्जांपल है, से आपने एक साइंटिफिक एप्लीकेशन बनाया है जो साइंटिफिक एप्लीकेशंस में यूज होता है, या मेडिकल एप्लीकेशन से फॉर एग्जांपल मेडिकल एप्लीकेशन का आपने एक सॉफ्टवेयर बनाया है और वो इमेजेस को यूज करके कुछ प्रोसेसिंग करता है, एंड दैट रिक्वायर्स अ रिगरस मैथमेटिकल प्रोसेसिंग. ह्यूज नंबर ऑफ कैलकुलेशंस एंड प्रोसेसिंग इज रिक्वायर्ड मैथमेटिकली. सो जैसी मैथमेटिकल कैलकुलेशंस का एक्सपोनेंशियल ग्रोथ होता है, तो मेमोरी यूटिलाइजेशन बहुत तेजी से बढ़ने लगता है, मेमोरी रिक्वायरमेंट बढ़ने लगता है. सो अगर सोच लीजिए आपका वेब, आपने एक ऐसा एप्लीकेशन बनाया है जो
मेडिकल इमेजेस पे वर्क करता है और इमीडिएटली एक रिजल्ट देता है। जैसे मेडिकल इमेजेस आ रहे हैं, उसको एनालाइज करके तुरंत एक रिजल्ट देता है। तो वो करते करते मैथमेटिकली बहुत ज्यादा अगर कॉम्प्लेक्स हो जाता है उसका प्रोसेस, और मेमोरी खूब सारा एक्वायर कर लेता है, तो क्या होगा, एक सर्टेन पॉइंट में आके मेमोरी रिक्वायरमेंट फुलफिल नहीं हो पाएगा, क्योंकि देर इज ए लिमिटेड अमाउंट ऑफ मेमोरी अवेलेबल while running the program. So if it exceeds that particular limit, that particular program will stop executing further and will break down. अगर वो ब्रेक डाउन कर गया तो आपका जितना तक अभी तक जो भी प्रोसेसिंग हुआ था सब वेस्ट हो जाएगा। तो वो एक और रिलायबिलिटी फैक्टर में आ जाता है। अगर वो ब्रेक डाउन ना हो, अगर वो अपने आप को संभाल सके, तो दैट इज रिलायबिलिटी। जैसे बहुत सारी चीजें हैं जिसके ऊपर रिलायबिलिटी डिपेंड करता है किसी भी सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन का। So there are some inbuilt features in programming languages that help us to improve the reliability. और जैसे वन ऑफ द वेरी कॉमन केसेस जो मैंने जैसे आपको पहले भी बताया होगा शायद, कि जावा में एक्सेप्शन हैंडलिंग प्रोसीजर होता है, सी प्लस प्लस में भी होता है, लेकिन दैट इज नॉट रोबस्ट। लेकिन जावा में एक्सेप्शन हैंडलिंग प्रोसीजर है विच इज वेरी वेरी रोबस्ट, दैट हेल्प्स यू टू मेक जावा प्रोग्राम्स मोर रिलायबल। वो बहुत सारे स्ट्रेस कंडीशंस में अपने आप को, आप अपने सिस्टम को बचा सकते हैं if you have developed the application using Java. So those features which are there in programming languages which help them improve reliability, they are less susceptible to failures or crashes. So there is a very major factor, ये बहुत ही weighted and major factor होता है while selecting a programming language, while evolving a programming language. तो जैसे जैसे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इवॉल्व हो रहे हैं, रिलायबिलिटी फैक्टर भी उसमें जो है इंप्रूव होती जा रही है, बिकॉज इट इज नीडेड। क्योंकि अब जैसे पहले जो है कुछ जीबीज में डेटा हैंडल होता था, आजकल टेराबाइट्स और पेटाबाइट्स में डेटा हैंडल होने, मतलब बिग डेटा जिसके बोल रहे हैं हम लोग, उस टाइप पे हम लोग जाने लग गए हैं। तो ये एक नॉर्मल काइंड ऑफ ए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कैन नॉट हैंडल दोस काइंड ऑफ डेटा, इसीलिए हडूप और इस टाइप के जो है एप्लीकेशंस यूज किए जाते हैं। तो अभी लोग सिर्फ जावा पे काम नहीं करते, अभी जो है हडूप पे भी काम करते हैं, वो जावा की भी प्रोग्रामिंग करते हैं उसके अंदर भी। तो ये बहुत बहुत जो है इट इज इवॉल्विंग, बिकॉज रिलायबिलिटी फैक्टर एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर बन जाता है, बिकॉज द अमाउंट ऑफ डेटा प्रोसेसिंग हैज इंक्रीज, एंड दैट्स व्हाई द इवोल्यूशन इज नेसेसरी, बिकॉज टू improve the reliability the programming language has to be evolving in a better way. So inbuilt features of the programming languages जो होते हैं, इट इज वेरी वेरी गवर्निंग फैक्टर। ये हो गया फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग द इवोल्यूशन ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। नेक्स्ट वी विल सी अबाउट डेवलपमेंट इन प्रोग्रामिंग मेथोडोलॉजीज। अभी तक जो पॉइंट्स अपन ने देखा, इसमें किसी को कोई डाउट है क्या? अभी मैं पॉइंट्स आपको फिर से दिखा देता हूँ। सपोर्ट एंड कॉन्फ़िगरेशन, डेवलपमेंट टाइम, डेवलपमेंट कॉस्ट, reliability and readability and writability, efficiency and reliability. So इसमें किसी को कोई क्वेश्चन है क्या? Any question to be asked here? चलिए, so हाँ, any questions? So now we will move on. Development in programming methodologies next जो topic है, development in programming methodologies. So there are 7 major types of programming methodologies that you will be encountering. ये सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट मेथोडोलॉजीज हैं जो कमर्शियली डेवलपमेंट किए जाते हैं। उनमें ये 7 काफ़ी मेजरली यूज किए जाते हैं। इनके अलावा भी हैं, नॉट लिमिटेड टू 7 ओनली, बट मेजर जो बहुत पॉपुलर हैं, मेजर हैं, वो 7 हैं, तो एक स्टैंडर्ड वे में यूज किए जाते हैं। सबसे पहला है, नंबर 1 इज वाटरफॉल मॉडल methodology. In waterfall model, what happens is that the sequence of development is fixed. Analysis, design, coding, maintenance, ये phases जो है वो fixed होती हैं, and it is not iterative in nature. Not iterative का मतलब क्या होगा कि आप एक फेज से दूसरे फेज में आने के बाद
वापस पिछले वाले फेज में जनरली नहीं जाते हैं, और जाएंगे भी तो बहुत माइनर चेंजेस करते हैं, मेजर चेंजेस कुछ भी नहीं होता। वाटरफॉल मॉडल उन्हीं सब कमर्शियल या उन्हीं सब एप्लीकेशंस के लिए हम इंप्लीमेंट करते हैं जहां पे द रिक्वायरमेंट्स आर फिक्स्ड, रिक्वायरमेंट्स डू नॉट चेंज डायनेमिकली। कस्टमर ने जो रिक्वायरमेंट दे दी, उसके बेसिस पे सॉफ्टवेयर बन के तैयार होते तक कस्टमर उसको रिव्यू नहीं कर सकता। इस टाइप का कुछ थोड़ा रिजिड होता है। तो जनरली आप कहेंगे कि भाई ऐसा रिजिड बनाने की जरूरत क्या है? इट इज यूज्ड व्हेन वी आर एक्चुअली कन्वर्टिंग अ मैनुअल सिस्टम टू एन ऑटोमेटेड सिस्टम। से मैनुअली हम से फॉर एग्जांपल हम लेजर्स मेंटेन करते हैं, जैसे अकाउंट्स के लेजर्स हम मेंटेन करते हैं, कुछ मैनुअल हम प्रोसेसेस यूज करते हैं, मैनुअली कुछ एक मैथमेटिकल फॉर्मूला यूज करते हैं, बहुत फिक्स रहता है, उसको चेंज नहीं करते। दैट इज फिक्स्ड फॉर मेनी फॉर हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स, वो फिक्स्ड है। मतलब अगर आपको अगर प्रॉफिट अगर कैलकुलेट करना है तो डेवलपमेंट कॉस्ट माइनस सेलिंग कॉस्ट निकालेंगे, तो दैट इज योर प्रॉफिट। ठीक। तो दैट इज अ सिंपल फॉर्मूला। ये इसका मतलब ये चीजें फिक्स्ड है। कुछ चीजें अगर फिक्स्ड है, मैनुअल सिस्टम है, उसका अगर ऑटोमेट करना है, उसका अगर सॉफ्टवेयर के थ्रू इंप्लीमेंट करना है, सॉफ्टवेयर बना के इंप्लीमेंट करना है, तो आप वाटरफॉल मॉडल यूज कर सकते हैं। सो वाटरफॉल मॉडल इज जनरली मेंट फॉर दोज एप्लीकेशंस हुज रिक्वायरमेंट्स आर फिक्स्ड, दे डो नॉट चेंज। सेकंड मॉडल है प्रोटोटाइपिंग मॉडल। प्रोटोटाइपिंग मॉडल का क्या मतलब होता है? इसमें प्रोटोटाइप्स क्रिएट किए जाते हैं। प्रोटोटाइप्स का मतलब एक सैंपल सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट क्रिएट किया जाता है, सैंपल्स क्रिएट करते हैं। और वो जो सैंपल्स होते हैं वो इनकम्प्लीट सैंपल्स नहीं होते, दोज आर कंप्लीट सैंपल्स। तो डिपेंडिंग अपॉन द करंट रिक्वायरमेंट अ प्रोटोटाइप इज क्रिएटेड। प्रोटोटाइप क्रिएट करने के बाद हम यूजर को, कस्टमर को वापस उस प्रोटोटाइप को देते हैं टू टेस्ट द प्रोटोटाइप, एंड द कस्टमर टेस्ट्स द प्रोटोटाइप एंड गिव्स द फीडबैक कि मुझे ये सब चेंजेस और करके दीजिए। देन वी डेवलप द नेक्स्ट वर्जन ऑफ द प्रोटोटाइप, दैट इज ऑल्सो ए कंप्लीट वर्जन। a complete product is created, again it is given to the customer, and ये चलता रहता है to a particular extent। से it is pre decided that हम इसको 5 बार करेंगे, 5 बार हम कस्टमर को देंगे प्रोडक्ट बना बना के, वो उसको टेस्ट करेगा, हमको फीडबैक देगा। as soon as we get the feedback, we perform the necessary changes to the existing system, again create a new product, a modified product, and give it back to the customer for testing, and so on। say for 5 times we'll do it। सो ये फिक्स नंबर ऑफ टाइम्स हम प्रोटोटाइपिंग मॉडल को, मतलब प्रोटोटाइप बनाते हैं, और ये प्रोटोटाइपिंग मॉडल में इस टाइप का डेवलपमेंट होता है। बट प्रोटोटाइपिंग मॉडल्स आर नॉट सूटेड फॉर वेरी लार्ज प्रोजेक्ट्स। ये मीडियम साइज या स्मॉल साइज प्रोजेक्ट्स के लिए अच्छा रहता है। तो नेक्स्ट इज थर्ड। थर्ड जो टाइप होता है विच एजाइल सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट मेथोडोलॉजी। एजाइल का मतलब ही ये होता है कि रिक्वायरमेंट्स आर चेंजिंग रैपिडली। रिक्वायरमेंट्स कहाँ चेंज होते हैं रैपिडली? जनरली वो सब एप्लीकेशंस में जहाँ पे आ, से गेमिंग सॉफ्टवेयर बना रहे हैं। तो गेमिंग सॉफ्टवेयर जब बनाते हैं तो उसमें रिक्वायरमेंट बहुत तेजी से चेंज होता है, क्योंकि वहां पे यूजर इवैल्यूएशन जो है, वो स्पेक्ट्रम ऑफ यूजर्स इज वेरी वेरी लार्ज। पूरी दुनिया के लोग गेम्स खेलते हैं। अगर उनको आप टेस्ट करने के लिए देंगे तो बहुत सारे उसमें आइडियाज आपको मिल जाएंगे एट ए टाइम। उन आइडियाज को आप इंप्लीमेंट करके फिर से जब एक और आप प्रोडक्ट बना के देंगे तो फिर से उसमें और बहुत सारे आइडियाज आपको मिल जाएंगे। सो दिस काइंड ऑफ ए चेंजिंग काइंड ऑफ ए थिंग। आपका सॉफ्टवेयर कभी कभी ऐसा होता है कि पूरा सॉफ्टवेयर का स्ट्रक्चर ही चेंज हो जाता है, आर्किटेक्चर ही चेंज हो जाता है। एजाइल डेवलपमेंट उस टाइप का डेवलपमेंट मेथोडोलॉजी है जहां पे पूरा प्रोडक्ट का जो आर्किटेक्चर है वो चेंज होता रहता है, और प्रोडक्ट जो है वो इवॉल्व होता रहता है। एक्चुअली इवोल्यूशन काइंड ऑफ ए थिंग। तो एजाइल सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट मेथोडोलॉजी हम लोग डिटेल में देखेंगे, उसमें किस टाइप से हम लोग उसको डेवलप करते हैं। उसके बाद फोर्थ टाइप ऑफ मेथोडोलॉजी इज रैपिड एप्लीकेशन डेवलपमेंट मेथोडोलॉजी, RAD भी बोलते हैं इसको, रैड मॉडल। ये रैड मॉडल जो होता है, इट इज मेंट फॉर वेरी फास्ट एंड क्विक डेवलपमेंट। अब क्विक डेवलपमेंट ऑफ लार्ज प्रोजेक्ट्स, एक्चुअली ये जो है ना लार्ज प्रोजेक्ट्स के लिए होता है। एजाइल सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट जो है वो बहुत लार्ज प्रोजेक्ट्स के लिए नहीं कर सकते।
रैपिड एप्लीकेशन डेवलपमेंट मॉडल जो होता है ना, वो लार्ज प्रोजेक्ट्स के लिए होता है। उसमें क्या करते हैं, दोज प्रोजेक्ट्स, दोज कंपनीज हु हैव अ ह्यूज नंबर ऑफ एम्प्लॉयज विद देम, जैसे इन्फोसिस है, उसके पास कई लाख एम्प्लॉयज हैं। तो अगर से फॉर एग्जांपल दे कैन यूज दोस दैट मैन पावर टू बिल्ड द पार्ट ऑफ एप्लीकेशन इन ए पैरेलल मैनर। अब इसमें रैपिड एप्लीकेशन डेवलपमेंट में एक बहुत बड़ा कंस्ट्रेंट क्या होता है कि आपके पास जो भी प्रॉब्लम है उसको आपको ऐसे डिवाइड करना है जो पैरेलली डेवलपेबल हो। तो प्रॉब्लम को डिसइंटीग्रेट करते हैं इस टाइप से कि वो पैरेलली जो है सॉल्वेबल होना चाहिए। जैसे वो पैरेलली सॉल्वेबल मॉड्यूल्स में कन्वर्ट हो जाता है, तब उन मॉड्यूल्स को डिफरेंट ग्रुप्स को डेवलपमेंट करने के लिए दे दिया जाता है, जो डिफरेंट ग्रुप्स एक साथ डेवलपमेंट शुरू करते हैं और एक साथ डेवलपमेंट को खत्म करते हैं। और लास्ट में जो वो डेवलपमेंट करके प्रोडक्ट बनाते हैं उनको एक साथ फिर जोड़ दिया जाता है, तो पूरा प्रोडक्ट बन के तैयार हो जाता है। तो रैपिड एप्लीकेशन डेवलपमेंट में एक तो आपको एक तो ये है कि आपको प्रॉब्लम को समझना पड़ेगा कि वो पैरेलली एग्जीक्यूटेबल सब मॉड्यूल्स में डिवाइड हो सकता है कि नहीं। अगर नहीं हो सकता तो रैड मॉडल यूज नहीं कर सकते। अगर हो सकता है तो फिर आपको ये डिसाइड करना पड़ेगा कि कितने सारे सब मॉड्यूल्स पैरेलली बनने वाले हैं, और उनके लिए आपको मैन पावर भी जरूरत पड़ेगी जो पैरेलली काम करेंगे। अगर आपके पास 10-50 लोग हैं तो आप उस पर काम नहीं कर सकते, आपके पास बहुत सारे लोग होने चाहिए, क्योंकि हर एक मॉड्यूल पे 10-50 लोग या 100 लोग काम करेंगे, तब जाके आपका डेवलपमेंट जो है जल्दी से जल्दी होगा और पैरेलली होगा। So that is a RAD model. We'll see it in details later on. फिफ्थ जो मॉडल है वो डायनेमिक सिस्टम डेवलपमेंट मॉडल। इट इज सिमिलर टू एजाइल सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट मॉडल। इसमें जो है, इसमें भी रिक्वायरमेंट्स चेंज होती रहती हैं, लेकिन एक बेस रिक्वायरमेंट जो है उसको चेंज नहीं करते हैं इसमें, लेकिन जो सुपरफिशियल रिक्वायरमेंट्स होती हैं उनको इनको चेंज करते रहते हैं। और प्रोडक्ट जो है वो थोड़ा थोड़ा वर्जन्स में बनाया जाता है। तो डायनेमिक सिस्टम डेवलपमेंट मॉडल में देर इज ए चेंज, डायनेमिक चेंज इन द प्रोडक्ट डेवलपमेंट। ड्यूरिंग द डेवलपमेंट itself the changes are incorporated in a dynamic manner. So यूजर से इंटरेक्शन बहुत ज्यादा होता है इसमें, मतलब एनालिसिस फेज में भी यूजर का इन्वॉल्वमेंट रहेगा, डिजाइन फेज में भी यूजर को इन्वॉल्व करते हैं, कोडिंग फेज में भी यूजर को इन्वॉल्व करेंगे, और टेस्टिंग फेज में भी कोड जो कस्टमर है उसको इन्वॉल्व करेंगे, और मेंटेनेंस फेज में तो कस्टमर इन्वॉल्व होता ही है। सो द कस्टमर इन्वॉल्वमेंट इज एक्टिवली इन एवरी फेज ऑफ डेवलपमेंट इन डायनेमिक सिस्टम डेवलपमेंट मॉडल। सिक्स्थ जो मॉडल है वो है स्पाइरल मॉडल मेथोडोलॉजी है। स्पाइरल मॉडल में इट इज सिमिलर टू प्रोटोटाइपिंग काइंड ऑफ ए सिस्टम, बट इट इज मेंट फॉर लार्ज प्रोजेक्ट्स। प्रोटोटाइपिंग मेथोडोलॉजी जो होता है वो स्मॉल प्रोजेक्ट्स के लिए है। वही चीज को अगर हम बड़े फॉर्मेट में कन्वर्ट कर ले तो स्पाइरल मॉडल होता है। लेकिन स्पाइरल मॉडल में द मेजर फैक्टर दैट इज कंट्रीब्यूटेड और इनकॉर्पोरेटेड इज द असेसमेंट ऑफ रिस्क। रिस्क असेसमेंट बोलते हैं। रिस्क असेसमेंट एक मेजर स्टेप या फेज बन जाता है इन स्पाइरल मॉडल्स। स्पाइरल मॉडल्स में ये बहुत बड़ा एक इंपॉर्टेंट मेजर स्टेप माना जाता है। तो स्पाइरल मॉडल में जो है डेवलपमेंट रिपीटेड होता है प्रोटोटाइपिंग मॉडल के जैसे, लेकिन इसमें रिस्क असेसमेंट वाला पार्ट बहुत मेजर पार्ट बन जाता है एट एवरी फेज ऑफ डेवलपमेंट। रिस्क अगर बहुत ज्यादा हो जाए तो डेवलपमेंट को वहीं पे स्टॉप किया जाता है। रिस्क अगर कम है तो डेवलपमेंट मतलब जो है उसके वर्जन्स फर्दर क्रिएट करना अलाउड किया जाता है। देन द लास्ट इज स्क्रम डेवलपमेंट मेथोडोलॉजी। स्क्रम डेवलपमेंट का मतलब होता है इट इज ए वेरी लेटेस्ट काइंड ऑफ ए डेवलपमेंट मेथोडोलॉजी, जो आजकल के ऑलमोस्ट सभी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट फर्म्स इंप्लीमेंट करते हैं। एजाइल और स्क्रम ये दोनों बहुत पॉपुलर है। स्क्रम डेवलपमेंट में क्या होता है कि जो लेट हो गए जो प्रोजेक्ट्स हैं, जो डिलेड प्रोजेक्ट्स हैं, या ऐसे प्रोजेक्ट्स जिसमें डेवलपमेंट ठीक से नहीं हो पाया है, उन प्रोजेक्ट्स को स्पीड अप करने के लिए इसको बोलते हैं स्प्रिंट टेक्नोलॉजी यूज करके। स्प्रिंट मतलब भागना, स्प्रिंट का मतलब भी होता है तेजी से भागना। सो इस टाइप से एक तरीका यूज करके
बहुत फास्ट वे में जो पेंडिंग मॉड्यूल्स हैं प्रोजेक्ट्स के, उनको जल्दी से जल्दी जो है सॉल्व कर देना, उनको जल्दी से जल्दी डेवलप कर देना, वो स्क्रम डेवलपमेंट मेथोडोलॉजी होता है। मतलब स्क्रम डेवलपमेंट जो है खुद से एक कंप्लीट प्रोजेक्ट बनाने के लिए नहीं होता है, लेकिन जो प्रोजेक्ट्स डिले होते जा रहे हैं और जिनमें कुछ प्रॉब्लम्स आ चुके हैं जो ठीक नहीं हो पा रहे हैं या पेंडिंग रह गए, एक्चुअली वो सब चीजें जो पेंडिंग होते जा रही हैं उनको तुरंत के तुरंत जल्दी से जल्दी जो है ट्रैक पे लाने के लिए स्क्रम डेवलपमेंट मेथोडोलॉजी यूज करते हैं। ये बहुत ही पॉपुलर मेथोडोलॉजी है, वी विल सी इट इन डिटेल्स। सो दीज आर द 7 प्रोग्रामिंग मेथोडोलॉजीज दैट आर इम्प्लीमेंटेड ड्यूरिंग सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, या सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट मॉडल्स भी कह सकते हैं इनको। तो होपफुली द पॉइंट्स आर क्लियर। किसी को कुछ डाउट है, क्वेश्चन है तो प्लीज पूछिए। सर स्पाइरल का थोड़ा